بذکرہ عباد اللہ سید العرب والعجم خلقا و خلائق جن والانس قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید مولانا ابو القاسم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام واہل بیت طیبا طاہر المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت اللہ علی بن ابی طالب والصلاة والسلام من جعلم شاہدا و مبشرا و نذیرا وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ صلوات فرمان معصوم ہے. کتاب کا حوالہ معانی الاخبار شیخ صدوق شیعت کی سید مستند ترین کتاب. ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد باقر نے فرمایا جو خود بھی علی ہے اور محمد بھی ہے کہ ہماری زوات پر اس طرح درود بھیجو جس طرح صلاۃ پڑھتے ہو. صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائے تو زیادہ لطف آتا ہے. صلی علی محمد علی محمد. ذکر کا آغاز کر رہا ہوں ایک شعر سے. بسم اللہ. یہ شعر جہاں بھی پڑھا ہے عزت علی کی قسم، بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں عزت اللہ کی قسم. نہیں، اکثر خطبہ سے علماء سے ذاکرین سے آپ نے سنا ہے کہ یہ عزت اللہ کی قسم، عزت خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، لیکن عزت محمد و آل محمد کی قسم کبھی غور کیا یہ اللہ کی عزت ہے کون؟ اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا کہ یہ عزت اللہ ہے کون. 12 تفسیر ابن کثیر جس کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے وہ بھی یہی چیختی ہوئی نظر آئی. عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا. عزت اللہ وصول کرنا، عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا. تو اب مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے جملہ آپ کے حوالے جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہیں اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں. اور جو علی ولی اللہ پڑھ کر علی کے فضائل پر، علی کی معرفت پر، علی کی ولایت پہ شک کرے معاف کرنا اس سے بڑا بے غیرت کو. نعرہ لگانا. ایک میسمی، ایک کمبری، ایک خطیری، ایک میرے مرشد سرکار قلندری. نعرہ حیدری بلو. جیو جیو کی بلا جیو. وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام ہستی امام پر، وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام ہستی امام بن کر. شعر بھی وہی پسند کرے گا جو فطرتاً شعر ہو، کیونکہ شعر کہنے اور شعر سننے کے لیے شعر ہونا ضروری ہے. ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا. ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا. ارے بلب کا کام تھا جلنا تو وہ جلتا رہ گیا. تو فیس بک استعمال کرتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں نا فیس بک سے دور رہا کرو، سوچ سمجھ کے کہا کرو اللہ نے بھی فیس الگ اتارا ہے، بک الگ اتاری.
जियो जियो जिक्र हैदर सुन के दुश्मन हाथ मरता रह गया। अरे बल्ब का था काम जलना, सो वो जलता रह गया। और 14 पर्दों में है एक पर्दा रुखे तौहीद का, पर्दादारी भी रह गई, पर्दा भी ढलता रह गया। वाह 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 जियो की बता जियो। देखिए मेरी माँ ने कम से कम मुझे इतना तो सिखाया है, मेरे बच्चे अकीदा देखकर बेशक मजमा बदल लेना, मजमा देखकर अकीदा ना बदल। चले नहीं, जिक्र का आगाज हो गया तो एक रिवायत मुझे मेरा मालिक मूसा काजिम हजरत फरमाते हैं कि हजरत की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, या इमाम हल यल्ज़िमु ले रजुलिल बितफ़वीदुका बिविलायता इमाम ज़माने ना फी अस्मी। वाह वाह कोशिश करना, अल्लाह करे मुझे तर्जुमा करने की जरूरत ही ना पड़े। किससे कह रहा है? जो खुद वक्त का इमाम है। क्या कह रहा है? क्या हर एक पर लाजिम है अपने वक्त के इमाम की मार्फत रखे, विलायत रखे, मोहब्बत रखे। जलाल के आलम में आया बतूल का बेटा और एक जुमला कहा अल्लाह तामनु बिविलायता अमीरुल मोमिनीन। बात यह है, अगर तेरे दिल में अमीरुल मोमिनीन की विलायत नहीं तो तुझे मेरी विलायत भी कोई फायदा नहीं। तुझे मेरी विलायत भी कोई फायदा नहीं देगी। आप तो बात दे रहे, वो गया सुन, उसने कहा मौला मैं समझा नहीं। कहा बात ये है बेबाक, अगर तेरे दिल में मेरे दिल में अली की विलायत को लेकर राई के दाने के बराबर भी शक आए तो खुद मेरी इमामत किसी काम की नहीं रहती। डूब के मर जाओ जिस अली की विलायत के बगैर उसके कासिम की खुद की इमामत बाकी नहीं रहती। अल्लाह जाने मौलवी की जमात। वाह 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 जियो 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 की बता जियो की वाह 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 माशाल्लाह। कुरान की जिस आया वाफी हिदाया को मैंने सबनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत तक आने के लिए चंद मतालिब आप क्या। बिस्मिल्लाह इरशाद हो रहा है सूरह रहमान में, इन्नी जाइलुम फिल अर्ज़ खलीफा। जाओ आदम, हमने तुम्हें जमीन का खलीफा बना। देखिए ये बात मैं कराची हो या पंजाब हो या सिंध हो हर कोने में कहकर आया हूं। अब मुझे नहीं पता आप किस तरह वसूल करेंगे कि जिसकी नजर में तवज्जो, जिसकी नजर में किसी कौम का खुदा होना, किसी कौम का परवरदिगार होना, किसी कौम का माबूद होना अहमियत नहीं रखता, उसकी नजर में किसी कौम का खलीफा होना खाक है। जियो 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 माशाल्लाह। खाक अहमियत रखेगा। और अल्लाह कह रहा है कि जाओ आदम, हमने तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया। लेकिन ये नहीं कहा मैं भी खलीफा तू भी खलीफा। वाह वाह वाह। बात आगे चली, बात आई इब्राहिम तक। इब्राहिम आए, कहा इन्नी जाइलुम मिनन इमामा फिल अर्ज़, मैंने तुम्हें जमीन पे लोगों का इमाम बनाया। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने तुम्हें जमीन पे लोगों का इमाम बना दिया, लेकिन कमाल है ये नहीं कहा मैं भी इमाम तू भी इमाम, ये नहीं कहा मैं भी रसूल तू भी रसूल, ये नहीं कहा मैं भी नबी तू भी नबी। बात आई इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूली व युकीमुस सलाता व युतीतुस ज़काता व हुम राकिऊन। मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली और रुकू में ज़कात देने वाला भी वली। अब मुझे ये कहने की इजाजत है, अली ने क्या दान किया था? एक अंगूठी थी जो अली के अल्लाह वाले हाथ में थी। यही हक है सुनने का। तो अर्श पे चंद फरिश्तों की बहस हुई कि अली के हाथ में सुलेमान की अंगूठी है जिससे सुलेमान चरिंद परिंद जिन्स इंस
वाह 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 फरिश्तों मलाइका पर हुकूमत करता था। एक ने कहा जाओ अली से मांगो, अली दे देंगे। दूसरे ने कहा अली नहीं देंगे, इससे हुकूमत चलती है। कहाँ बैठे? कहा अली दे देंगे। कहा इतना बड़ा झगड़ा क्यों बनाया हुआ है, जमीन पे जाकर अली से पूछ लो। अब जमीन पे आया, अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में दाखिल हुआ और कहा है कोई अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करने वाला? कोई जवाब नहीं। मस्जिद में खड़ा है, अल्लाह के घर में खड़ा है। दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा मनादी की और मस्जिद के दर पर आके कहा ऐ पालने वाले तेरी बारगाह से खाली हाथ जा रहा हूं। दो रिवायतें मिलती हैं, अली का यदुल्लाही हाथ बुलंद हुआ, अंगूठी निकली, कशकोल के अंदर गई। दूसरी रिवायत ये मिलती है अली ने हाथ बुलंद किया, उसने अंगूठी ले ली। एक मिनट, मैं आपको यहां की मिसाल दे दूं। एक साहब हैं, वो बैंक में नौकरी करते हैं। उनकी तनख्वाह, मिसाल दे रहा हूं, उनकी तनख्वाह 1 लाख है। अब वो जब ज़कात देंगे तो 20,000 देंगे, इससे ना 1 रुपया ज्यादा देंगे ना कम देंगे। लेकिन अली ने तो वो अंगूठी दी थी जिससे सुलेमान जैसे नबी की हुकूमत चलती थी। कहना मैं ये चाह रहा हूं, जिसकी ज़कात, वाह 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 जियो 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 जिसकी ज़कात 2.5% पे कुल कायनात चलाती हो, उसकी कुल जायदाद क्या होगी? और वो खिलाफत के फकीरों से क्या मांगे? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह। अच्छा चले, इस मंजिल पे आ गया हूं तो एक रिवायत आपके हवाले करूं। रसूल के पास एक शख्स आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझ पर जुल्म करता है, मुझ पर सितम करता है। कहा तेरा नहीं है, वो हराम का है। आप जो समझ रहे हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। घर आया, तलवार को बेनयाम किया, अपनी ज़ौजा की गर्दन पे रख के कहता है तूने मेरी अमानत में खयानत की है। कहा तुमसे किसने कहा? कहा मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है। कहा मैं उसी रसूल की रिसालत के कसम खा के कहती हूँ, मैंने तेरी अमानत में कोई खयानत नहीं की। हाँ अच्छा चलो, रसूल से ही फैसला करवाता। अब रसूल की बारगाह में दोनों, ज़ौजा भी आ गई, उसका ज़ौज भी आ गया। अब खड़े में रसूल की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह फैसला कीजिए। कहा जो तू समझ रहा है वो मैंने नहीं कहा। तुझे याद है आज से 20 बरस कबल तू एक बाजार से गुजर रहा था, वहां एक खजूर फरोख्त था, तूने उसकी इजाजत के बगैर, रकम तय किए बगैर उसकी खजूर उठाकर खाई और उसकी कीमत आज भी तुझ पे वाजिबुल अदा। काम दे के जा, नस्लों तक पहुंचाइएगा। कि रसूल ने कहा उसकी रकम आज भी तुझ पे वाजिबुल अदा है, इसलिए तेरा बेटा तुझ पे जुल्म सितम करता है। ये तो एक खजूर की बात है, उनका क्या जो पूरे बाग खा गए। खजूर हराम। वाह वाह क्या नहीं, जब बात खुल के आई है तो खुल के होगी। लोग समझते हैं खिलाफत का मसला। कुरान की आयत पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अफौ बिअहदी व ऊफी बिअहदिकुम। सूरह बकरा की छोटी सी आयत आपके हवाले की, उसका तर्जुमा करना चाह रहा हूं, इजाजत? बिस्मिल्लाह। इस आयत में अल्लाह बता रहा है कि तुम अल्लाह से अपना अहद निभाओ, अल्लाह तुमसे अपना अहदो पैमान निभाएगा। ठीक है। अब किताब का हवाला मुआनिउल अखबार शेख सदूक ने लिखा कि रसूल से इब्ने अब्बास रिवायत करता है कि रसूल ने फरमाया कि आदम ने अपनी औलाद को वसीयत की इस दुनिया से कूच करने से पहले कि मेरे वसी शीश के वफादार रहना। उन्होंने नाफरमानी की, बात आगे चली, बात आई नूह तक।
नूह ने वसीयत की अपनी कौम को कि तुम मेरे वसी शाम के वफादार रहना, लेकिन उन्होंने भी अपने अहद को पसे पुश्त डाला। असल में मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जब रसूल मिंबर पे थे तो रसूल को सुना नहीं, और रसूल जब चले गए तो उन्हें मिंबर पे बिठा दिया जो घर बिठाने के लायक नहीं। वाह 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 वाह, जियो वाह 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 जियो। बराबर जो घर बिठाने के लायक न थे, अब नूह ने वसीयत की शाम के हवाले से उन्होंने उसको भी पसे पुश्त डाल दिया। वक्त है, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह, पढ़े पढ़े आप। तो फिर उस अहद को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। बात आगे चली, बात आई इब्राहिम तक। इब्राहिम ने अपने वसी इस्माइल के हवाले से वसीयत की कि तुम इसके वफादार रहना। बात है वसी की। और फिर बात आगे आई, मूसा का दौर आया, मूसा ने कहा तुम मेरे वसी माऊन के वफादार रहना। बिस्मिल्लाह। फिर खैर उन्होंने इस अहद को भी खिलाफ कर चल पड़े। बात आई ईसा तक। ईसा क्योंकि मौजूद हैं, इस वक्त जिंदा है, बिस्मिल्लाह। आएंगे। और मैंने पढ़ा है, और हवाले देने का मकसद ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, हवाले देने का मकसद सिर्फ इतना है, आंखों से देखकर पढ़ने का आदि हूं, कान से सुनकर नहीं। अब तो किसी ने सुना भी नहीं था और कह दिया था मैं मौजूद थी, मैंने सुना था, रसूल ने ये फरमाया। चले एक शेर आपके हवाले कर देता हूं इस मंजिल पे। बच्चों की माँ अपनी जगह, अरे मुर्तजा से लड़ गई है, लानती कैसे ना हो। वाह 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 अब रसूल कह रहे हैं कि तुम भी साबका उम्मतों की तरह मेरे वसी को छोड़ दोगे और नुकसान उठाओगे, और तुम में से जो मेरे वसी अली इब्ने अबी तालिब से वफादार रहेगा वो मेरी नबुवत का वफादार है, वो खुदा की वहदानियत का वफादार है। इसका इकरार मेरी नबुवत का इकरार है, इसका इकरार अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। और कहा अना व अली जिल अबा वई उम्मत, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं, जुमला आपके हवाले, मुझे नहीं पता किस तरह सुनेंगे, कि जो अपने बाप का ना हुआ वो आपका खाक होगा। तो मसला वसी का था, खिलाफत का मसला अगर होता ना अजीजान, बस मैं अपनी मंजिल से करीब हो रहा हूं, तवज्जो मेरी है। बिस्मिल्लाह। पहले फर्द से आखिरी फर्द तक की तवज्जो चाहूंगा, फिर ये हवाले करूंगा कि पहला, अगर अली की खिलाफत का मसला होता तो कुछ अली को पहला खलीफा मानते, कुछ दूसरा मानते, कुछ तीसरा मानते, कुछ चौथा मानते। असल में इधर मसले दो हैं। असल में जमाना समझता है कि मसला ये है कि ये जमाना अली को अल्लाह समझ रहा है। मसला इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम ये नहीं है कि ये जमाना अली को अल्लाह समझ रहा है। मसला तो ये है मेरी जान कि वो अली कितना अली है जिसे अल्लाह भी अली समझता है। कितना अली है। खैर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। रसूल ने अली से फरमाया था कि अली फातिमा को मेरे खेमे में भेजो, मेरे हुजरे में भेजो। तवज्जो है। कुछ देर बाद फातिमा आई, रसूल कहा जाहिरी तौर पे आखिरी बार, और कहा आंखों में अश्क भरे में, कहा बाबा बुला रहे। अब जब अली अंदर गए ना, अभी मैंने क्या कहा, 14 पर्दों में है एक पर्दा रुखे तौहीद का, पर्दादारी भी रही, पर्दा भी ढलता रह गया। जरा हिजाब के अदद निकाल। 14 हिजाब के अदद हैं 14। जो 14 पर्दों में छुपे उसी को तो माबूद कहते हैं। खैर अली अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह फातिमा को क्या वसीयत,
अभी एक फरमान पढ़ूंगा मैं, किसका फरमान है? हसन अल अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अंदर गए, हजरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या वसीयत की फातिमा को? कहा बस जो जो फातिमा कहे वो करते चले जाए, जो जो फातिमा कहे। और रसूल जब हिजरत करने लगे थे ना, हिजरत के वक्त रसूल ने अली से कहा था, या अली मेरे बिस्तर पे मौत है, सो जा, सुबह मक्के के काफिरों की अमानतें लौटाकर चले आने और दोनों फातिमाओं को लेकर आए। वाह 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 खैर अली सो गए। सवाल ये है कि अली के मुसल्ले पे कौन था? जनाब फातिमा तो ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हिजाबुल्लाह मादरे हसनैन दुआ गोए अब्बास। शहजादी ने हाथ बुलंद किया और कहा, या अली बहक़ अली। अब खैर दिन का उजाला हुआ, अली बनी खुबैस की पहाड़ी पे आए और ये ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, मैं दोनों फातिमाओं को लेकर दिन के उजाले में जा रहा हूं, जिसकी गर्दन उसके कांधों पे बोझ लगे आके अली को। अली चले, महमिल तैयार की, दोनों फातिमाओं को सवार कराया। और सवारी वो है अली की जो कम अज कम जिसकी दस्तरख्वान का नाम चादर तत्हीर है, उसकी लजाम पकड़कर अली चल रहे हैं। सवार क्यों नहीं होते मालिक? आगे एक चरवाहा मिला, कहा जरा इधर आ। कहा मुझे देख ले, मेरी जुल्फों को देख ले, मेरी पेशानी को देख ले, मेरी ऐन को देख ले, मेरी लिसान को देख ले। लिसान पर बात होती, तवज्जो। क्यों कह रहे हैं अली? आदम से लेकर खातम तक और मेहदी तक अजल अल्लाह ताला फरज, किसी को भी लिसानुल्लाह का लक़ब नहीं। वाह 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 बेशक। यही सवाल पूछा था तुम्हारे सादिक मौला से किसी ने, किताब का हवाला अल तौहीद। मौला सादिक ने फरमाया था, मेरा जद अली लिसानुल्लाह है ही इसलिए क्योंकि वही तो है जो फातिमा का नाम ले सकता है। वही तो है जो फातिमा का नाम ले सकता है। अली चले, उस चरवाहे को नसीहत करके चले। इतने में 18,000 कबीलों के सरदारों ने सोचा कि अगर अली मक्के से चले गए तो हमारी इज्जतों को पैरों तले रोंद जाए, हमारी इज्जतों को पैरों तले रोंद जाएंगे। अब अली के पीछे 18,000 कबीलों के सरदार जब चले तो उस चरवाहे को बुलाकर पूछा, ऐसे 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 बंदे को देखा है? कहा देखा है, लेकिन खबरदार उसके पीछे ना जाना। वाह 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 वाह। उसके पीछे ना जाना। कहा हम 18,000 हैं, वो अकेला है, ऐसी क्या बात है? कहा उसकी आंखों में जलाले इलाही है। वाह 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 वाह। इलाही से बात शुरू की, जलाले इलाही तक आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अली ने देखा कि आसमान की जानिब एक काली घटा छा रही। अली ने उधर ही खेमा गाड़ा, दोनों फातिमाओं को दाखिले खेमा किया और फातिमा तो ज़हरा से हाथ जोड़कर कहा, अगर इजाजत हो तो इन्हें जहन्नुम रसीद करूं। अच्छा, मैंने समेट दी तकरीर। यूसुफ ने अपनी कौम को वसीयत की, लेकिन उस वसीयत से पहले एक रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अली इब्न हुसैन फरमाते, मोहम्मद बिन साबित इस रिवायत का रावी है, अब्दुल्ला इब्ने फलां वाह वाह माशाल्लाह आया और कहने लगा, ऐ अली के बेटे, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे दादा की विलायत थी जिसकी वजह से यूनुस पर अजाब आया। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अजाब आया था? वैसे मछली के पेट में रहे थे। कहा हकीकत तो बयान की हमने,
हमारे दादा अली की विलायत ही तो थी जिसका इकरार करने में यूनुस ने जरा सी देर की, अल्लाह ने अजाब नाज़िल कर दिया। वाह 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 सही बात माशाल्लाह अब फिर जब तौबा की तो उसने पूरी रिवायत सुनी, उसने खड़ा हुआ और उसने कहा मैं नहीं मानता। अच्छा, मोहम्मद बिन साबित 2 सफेद कपड़े इधर बिछा, एक पे खुद बैठ, एक पे इसे बिठा, और दोनों से कहा, नसीहत की हुक्म इमाम से कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध, चंद कलमात पढ़े, समंदर के किनारे खड़े। अब वो अरब का बद्दू जिसने कभी समंदर देखा ना हो, वाह वाह अब वो समंदर के किनारे खड़ा है, कहा जुमजुमा इब्ने मुरमुरा, एक बड़ी सी मछली बाहर आई और उसने कहा अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वसी रसूल या नाइब रसूल, वाह 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 जियो अस्सलामु अलैका या जीनतुल अर्श समावात वल अर्ज, ऐ जमीनों आसमान की जीनत, आप पर मेरा सलाम। माशाल्लाह वाह वाह जियो बस ये कहना था, एक सलावत पढ़। सल्ले अला मोहम्मद वाले तो बात पहुंच रही है, बिस्मिल्लाह। पीछे तक आवाज आ रही है। वैसे भी विलायत की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। वाह 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 कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, मैं ही तो हूं जिसने यूनुस को अपने शिकम में रखा था। यहाँ फारसी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, माही फिल शिकम, जैसे माही फिल आब है उसी तरह है माही फिल शिकम। माही कहते हैं मछली को, शिकम कहते हैं पेट को। पेट में रखा था उसने। कहा कसूर क्या था? कहा अली की विलायत को तस्लीम करने में जरा सी देर की थी। अरे ये तो अच्छा, गदीर में क्या हुआ था? गदीर के बाद अली मकान पे आए थे और वहां पीछे पीछे एक शख्स अली के पीछे पीछे चल रही। वो उधर पहुंचा, उसने देखा, बीज बोया, उसी वक्त पोपल फूटी और दरख्त जवान हो गया। वो हैरान हो गया। उसने अली से पूछा ये क्या हो रहा है? कहा तू क्यों आया है यहाँ? कहा मैं आपके पीछे पीछे बस चला आया था। कहा तू जानता है ये मेरी विलायती है। वाह 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 किताब का हवाला मदीनतुल मुअज्जिज हाशिम बहरानी ने ये जुमले लिखे। शियत की मुस्तनद किताब है, जिल्द नंबर 2। वाह तो उसमें हाशिम बहरानी ने ये तक लिखा कि उसने कहा, अली ने कहा कि तू यहाँ क्यों आया? कहा मैं तो आपके पीछे पीछे चला आया। कहा तुझे पता है इनमें, इस शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जिनके दिल में मेरे लिए शक हो। कहा मौला आप तो करीम हैं, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, मुझे बचा लीजिए। कहा मैं क्या करूं, इनके दिल में शक पड़ जाएगा। कहा अच्छा, अगर बचना चाहता है तो एक काम कर, इनके साथ कहता चल, पर मुनकरे विलायत अली लानत, पर मुनकरे विलायत अली लानत। जुमला आपके हवाले। तादुम में कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता। मैंने रवात जैसे शहर में कहा था, लोगों ने उठ के दाद दी थी, मैं क्या करूं? पर मुनकरे विलायत अली लानत। ये तो गदीर का हाल है। मुनकर खुद कह रहा है पर मुनकरे विलायत अली लानत। अरे मेहदी को आले ने दो, मुकस्सिर खुद कहेगा पर मुकस्सिर। वाह 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 जियो अली अली अल्लाह अच्छा सरकार मुझे बताएं, मैं अपना आत्मन इलेक्शन में खड़ा हूं, कभी कहा ठीक है नहीं है 30-40 साल की नौकरी जितनी की, कभी कहा फला तंजीम को छोड़ के फला, क्या कहा है? बस अलीयुन वलीउल्लाह पे समझौता न कर। और क्या मांगा? तो यूसुफ ने बनी इसराइल को ये वसीयत की थी, नूर सकलैन से पढ़ना वाले का जिम्मेदार, ये वसीयत की थी कि मेरे बाद तुम पर इतने जुल्म ढाए जाएंगे, तुम्हारे मर्दों को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा, तुम्हारी औरतों के शिकम फाड़े जाएंगे, इतना जुल्म होगा। लेकिन अल्लाह तुम्हें एक
نجات دہندہ عطا کرے گا. نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ مسیحا, مسیحا عطا کرے گا. اب ایک فقی تھا اس وقت, ولایت فقی نہیں, فقی تھا. تو اس نے کہا کہ وہ اس مسیحا کے قصے سنایا کرتا تھا. اللہ نے اس پہ وحی کی کہ ان کو بتا دو میرا وسیع آنے والا ہے. جس کو میں نے تم پر جزوی حجت بنایا ہے وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس جزوی حجت کے آنے کے انتظار میں دیکھا موسیٰ, جناب موسیٰ فرعون کے دربار سے جب نکلے تو یہ کہہ کر نکلے میں چہل قدمی کو جا رہا ہوں. ان کے ساتھ غلام بھی تھے اور انہوں نے غلاموں کے جلوس کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی بزم میں آ کے بیٹھے. جب بنی اسرائیل کی بزم میں آتے ہوئے اس فقی نے دیکھا, اس نے علامتوں سے اندازہ لگایا کہ وہی ہے, قدموں پہ سجدہ ادا کیا. موسیٰ جزوی حجت ہے, مانا, رسول ہے, اللہ کی کتاب اتری ہے, سب کچھ ہے, نبی ہے, اللہ کا پرہیزگار نبی ہے, کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرتا ہے, لیکن کلی حجت نہیں ہے. اگر میں حسین کے دربار میں سجدہ کروں تو مجھ پہ فتوے لگ جاتے ہیں. تو کچھ دیر بعد موسیٰ چلے گئے اور موسیٰ نے اس کے بعد جہاں پناہ لیے وہ ہیں پیغمبر اعظم جن کا نام ہے شعیب. ان کے گھر پہ پناہ لی. کس نے؟ موسیٰ نے. اور موسیٰ جب آئے تو موسیٰ کے انتظار میں انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. اللہ نے کہا میرے بندوں نے میرا شکر ادا کیا ہے, ان کے جو مصائب ہیں 40 برس کی جگہ 30 برس کر دیا. یہ سنا, فقی نے بتا دیا. اب فقی نے بتایا, انہوں نے پھر کہا بے شک وہی اسی کی طرف سے ساری بھلائی ہے, اس کی طرف سے بھلائی ہے, وہ خود بھلائی نہیں ہے, پتا کرو اس کی بھلائی کون. 30 برس ہوا, پھر انہوں نے شکرانے ادا کرنا شروع کیے, تو پھر وہ اسی وقت اب عذاب ختم ہوا, کچھ دیر میں موسیٰ چلے آئے. اور اس کے 40 برس بعد موسیٰ پر حملہ ہو گیا اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے. اور فرعون کو غرق کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے ایک گھوڑا اتارا تھا, وہ آگے چلتا تھا. کہا تھا نا موسیٰ اپنا عصا مارو, 12 رستے بن گئے. 12 رستے بنے, بنی اسرائیل گزر گئے, تو وہ رستہ ختم ہوا. فرعون کا گھوڑا ادھر ہی اور اس کی فوج غرق ہو گئی. وہ گھوڑا جب چل رہا تھا, میں کس طرح بیان کروں اب اس روایت کو, کیونکہ میں نے ایک تحفہ دینا ہے اور میں نے داخل مصائب ہونا ہے. بسم اللہ. تحفہ کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے طور پہ گئے, اپنی جگہ ہارون کو مقرر کر کے گئے. اب جب لوٹے ہیں تو منظر ہی عجیب ہے. منظر کیا ہے؟ سامری کے بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. موسیٰ نے جلال کے عالم میں کہا سزا تو میں تجھے بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ کیا کیسے؟ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. آپ نے یہ کیا کیسے, بس یہ کہنا تھا. جلال کے عالم میں موسیٰ اور کہا اے اللہ کے نبی, میں جب آپ کی سواری کو بچانے کے لیے اللہ نے جو گھوڑا اتارا تھا اس کے قدموں کی خاک کو جمع کر 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 چل رہا تھا, اس کے قدموں کی خاک کو جمع کر کر کے چل رہا تھا. اس خاک کا ایک ذرہ اس میں پھونکا, اس میں جان آ گئی. اب پتا چلا خیبر میں علی آگے, خندق میں علی آگے, صفین میں علی آگے, سلاسل میں علی آگے, نہروان میں علی آگے, مباہلے میں علی پیچھے کیوں؟ آگے محمد, دائیں حسن, بائیں حسین, پیچھے فاطمہ, پیچھے علی. پتا چلا علی مباہلے میں پیچھے چل ہی اسی لیے رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے نقش قدم مٹا مٹا کر چلے. جملہ آپ کے حوالے, ورنہ یہ زمانہ ایک زمانے میں کتنے زمانے خلق کر لیتا. واہ واہ واہ. یہی فاطمہ جس کو دروازے پر آ کے کہتے تھے دن کو رو یا رات کو رو. عزت علی کی قسم پہلی وکیلہ ہے ولایت. گھر گھر گئی ہے,
अली की विलायत लेकर। ये वो बीबी है, अली की विलायत। कहा क्या भूल गए तुम मेरे बाबा का खतीर वाला ऐलान? इसी को मौला बनाया था जिसको तुमने सलाम करना छोड़ दिया। अजरुकुम मिनल हुसैन। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं कि फातिमा ज़हरा अपने बेटे के गम ख्वारों के आंसू अपने रुमाल में लेने आती है। कैसे सुनोगे तुम? मेरा दिल कहता है आज हुसैन आया होगा, दामन फैला के कह रहा होगा, है कोई मेरी माँ को रोने वाला? है कोई मेरी माँ को रोने वाला? जिसके दरवाजे पे आ